Hello everyone. In the previous lecture of electrochemistry, you know that we have gone through the construction and working as well as uses of the lead accumulator, nickel cadmium cell, mercury battery as well as the fuel cell. In the today's lecture, we have to see what is the electrochemical series, what are the applications of the electrochemical series. लेकिन इससे पहले ये जानेंगे क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्टूडेंट्स, अभी आपको तो पता है बाय यूजिंग द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स ऑफ मेनी इलेक्ट्रोड्स एंड when these electrodes with their half reactions they are arranged in order of decreasing their standard potential values, then the series we get here that is known as a electrochemical series. Okay, so यहाँ पे मैंने लिखा है definition. It is the arrangement of electrodes with the electrode half reactions in order of decreasing standard potential that is known as a electrochemical series, also known as a EMF series. Okay, so here different electrodes are arranged in order of decreasing their standard potential values. Okay, तो इसके लिए आपको वो सीरीज को रेफर करना होगा. इसलिए पेज नंबर है आपके टेक्स्ट बुक का 116. यहां पे जो सीरीज दिया है इसको आपको रेफर करना होगा. तो मैं चाहूंगा कि आप साइमल्टेनियसली उसको सामने रखने के बाद ये हर एक पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है. सो द पॉइंट नंबर 1 इज हियर. देखिए द हाफ रिएक्शंस, यहां पे मैंने कुछ लिखे हैं की फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. द हाफ रिएक्शंस आर रिटन एज रिडक्शंस and the oxidizing agents and electrons appear on the left side of the half reaction while reducing agents are shown on the right side. अगर आप यहाँ पे देखोगे इन द सीरीज क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यू नो दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर गेट एडेड देयर. ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज रिटर्न रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो जो भी हमने यहां पे रिएक्शंस लिखे हैं इन द EMF सीरीज, all that reactions are nothing but the reduction reactions only, क्योंकि सभी reactions में electrons क्या हो रहे हैं, gain हो रहे हैं. Okay, so all that reactions are nothing but reduction reactions, and on the left hand side oxidizing agents are written as well as they are added with the electrons. On the right hand side there is reducing agents we have written. तो ये यहां पे लिखे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स एरो के राइट हैंड साइड पे. ये यहां का फर्स्ट पॉइंट. बिलो देखिए अभी अगर आप देखोगे सीरीज में तो आपको दिखाई देगा कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन से हियर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट. इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको दिखाई देगा निगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे आर going on, they are going on increasing from hydrogen onwards towards the bottom. जो भी यहां पे नेगेटिव वैल्यूज हैं ये इंक्रीज होते जा रहे हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और SHE के ऊपर, मतलब जिसका पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट, इसके ऊपर जो भी दिए हैं वैल्यूज, ये वैल्यूज यहां पे बढ़ते जा रहे हैं. सो हियर पॉइंट नंबर 2, बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड the negative standard potential increases and above the same electrode the positive standard potential value increases. Okay, तो ये रहा यहां का सेकेंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है सीरीज में. यू कैन ऑल्सो सीरीज. ठीक है. E naught values apply the reduction half reaction that occur in the forward direction as a return. तो यहां पे जो भी वैल्यू दिए हैं लास्ट कॉलम में E naught के, they apply for the reduction half reaction that occur in the forward direction. मतलब यहां पे जो भी दिए हैं E naught के वैल्यूज, इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है जल्दी से रिड्यूस होगा और कौन सा नहीं. ठीक है.
नाउ सी हियर पॉइंट नंबर 4, हायर ई नॉट वैल्यूज, हायर मतलब more positive E naught values for half reaction indicates its greater tendency to occur in the forward direction and in turn tendency for substances to reduce. देखिए जिसका E naught का वैल्यू ज्यादा उसका ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने का. So obviously at the top you can see there is a fluorine F2 plus 2 electron, it gives yes twice F माइनस चाहिए था वहां पे, तो ये यहां पे लिखा है. इसके लिए जो वैल्यू दिया है ई नॉट वाला वो वैल्यू है प्लस 2.870, isn't it? So it's the highest value. So this fluorine, it is having the highest tendency to get, yes, to get oxidize, sorry, to get reduce, I'm sorry, to get reduce. तो यहां पे क्या होना जाना चाहिए? Yes, higher E naught values for a half reaction indicates its greater tendency to occur in the forward direction and in turn greater tendency of a substances to reduce. जितना E naught का वैल्यू ज्यादा उतनी ही रिड्यूस होने की टेंडेंसी यहां पे ज्यादा होगी. ठीक है. Conversely, the low value or we can say here more negative value of E naught of a half reaction corresponds to its greater tendency to occur in the reverse direction. ठीक है, मतलब E naught का वैल्यू जितना ज्यादा होगा निगेटिव, ये दिखाएगा more tendency to get oxidized. So here we can write, we can say that ये दोनों जो चीजें हैं बिल्कुल अलग है. E naught का वैल्यू ज्यादा होना, ज्यादा पॉजिटिव होना मतलब more tendency to get reduce, एंड ई नॉट का वैल्यू अगर है निगेटिव, ज्यादा निगेटिव मतलब है मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन से द सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द EMF सीरीज. ठीक है. अगर आप यहां पे देखोगे प्रॉपरली तो आपको दिखाई देगा कि सीरीज में क्या दिया है. लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन हैज कैटायंस ऑफ मेटल. आप देख सकते हो जो भी एरो के दिए हैं लेफ्ट साइड में आपको वहां पे दिखाई देंगे बहुत सारे कैटायंस. ओके. और नॉन मेटालिक मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली ये यहां पे दिए हैं लेफ्ट साइड में एरो के. ठीक है. नाउ देयर आर फ्री मेटल्स और एनायंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑन द राइट साइड. देखिए एरो के राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देंगे क्या, देयर आर फ्री मेटल्स और एनायंस ऑफ नॉन मेटल्स. तो ये जो भी दिखाई दे रहा है आपको एरो के आगे वाले, ये एक तो फ्री मेटल्स हैं या फिर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हियर एनायंस ऑफ नॉन मेटल्स, और वी कैन से दे आर नथिंग बट हियर रिडक्टेंट्स, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स. ओके. सो ये तो यहां पे सब चीजें मेंशन है प्रॉपरली. नाउ what are the applications of the electrochemical series? उसके एप्लीकेशन देखने से पहले ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी होगा कि ये सब के सब जो वैल्यूज है, यू नो दैट ऑल दैट वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे आर yes derived when all the ions are at 1 molar concentration in water. Remember ये जो भी होगा कॉन्सेंट्रेशन आयंस का यहां पे होना चाहिए 1 मोलर, एंड जो भी यहां पे गैसेस मेंशन किए हैं इनका प्रेशर भी होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर. ओके. ओके. सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर हियर. नाउ सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. इफ you have given many electrodes with their values of the standard potential, then we can also identify which of the electrode will act as a strong oxidizing agent. So we can compare the strength of the oxidizing agents. Okay. Now see the species on the left side of the half reaction in electrochemical series are oxidizing agents. जो भी लिखा है यू नो दैट एरो के लेफ्ट हैंड साइड में सम स्पेसिस आर देयर, यू नो दैट, तो वो जो भी होते हैं स्पेसिस दे आर नथिंग बट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स.
the species on the left side of the half reaction in the series are nothing but the oxidizing agents. E naught value measures the strength of the substances as oxidizing agent. Larger the E naught value, greater is the strength of the oxidizing agent. अगर आपने देखा होगा सीरीज को तो आपको एक एरो दिखाई दे रहा है जो कि दिखा रहा है दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज शोन दैट देयर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यूज ऑफ ई नॉट ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. इसका मतलब साफ है ई नॉट के वैल्यू यहां पे अगर है ज्यादा मतलब द टेंडेंसी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी मोर. ओके, मतलब आई विल से हियर द इलेक्ट्रोड फॉर विच द ई नॉट वैल्यू इज ग्रेटर इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 2. द स्पीसीज इन द top left side of the half reaction are strong oxidizing agent. जैसे कि यहां पे दिया है F2. yes, in the series if you check it properly here, so F2 is a strong oxidizing agent. F2 plus 2 electron it will give here twice F minus. तो ये जो दिया है यहां पे ये क्या है, तो F2 is a strong oxidizing agent जो यहां पे कहां पे है at the corner, I mean at the top left side of the half reaction. It is a strong oxidizing agent. As we move down the series, E naught values goes on decreasing and the strength of the oxidizing agent also goes on decreasing. बस आपको देखना है वो एरो जो जा रहा है नीचे से ऊपर and it is shown that increasing strength of oxidizing agent. मतलब जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाओगे there is a increase in the strength of the oxidizing agent. E naught का वैल्यू भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी वहां पे बढ़ेगा. ठीक है, अभी देखिए इसके ऊपर कैसे आते हैं प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में. यहां पे है सैंपल वाला न्यूमेरिकल. आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट. ठीक है, हमें पहले तो यहां पे करना है आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन कौन से ऐसे स्पीसीज है जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, एंड बाद में हमें इनको अरेंज करना होगा. यस, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, अभी देखिए सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे. रिमेंबर वी हैव टू अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ. ठीक है, अभी देखिए द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट on the left side of the half reaction in the electrochemical series are oxidizing agent. तो आपको यहां पे लिखना होगा आंसर में. yes, the same point जो भी यहां पे लिखा है मैंने, the species on the left side of the half reaction in the electrochemical series are oxidizing agent. अगर आप देखोगे सीरीज में तो आपको दिखाई देंगे the that Al3 plus Cl2 CD2 plus Fe नहीं है एंड I2. ये अगर आप देखोगे तो आपको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे. सो ऑल दीज आर नथिंग बट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो आई विल राइट हियर. यस, पहले तो आपको ये पहले वाला जो पॉइंट है लिखना होगा यहां पे द स्पीसीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन इन द सीरीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. हेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग agents are yes Al3 प्लस जिसका वैल्यू है -1.66 वोल्ट, फिर Cl2 1.36 वोल्ट. देखिए ये सब स्पीसीज जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन, इसीलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फिर यहां पे आएगा वापस I2 जिसका वैल्यू है 0.54 वोल्ट. ठीक है, अभी हमने इनको लिखा ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. देखिए और एक बात, लार्जर द ई नॉट वैल्यू ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ
of oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए इनमें से ई नॉट वैल्यू जो है ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा यहां पे वैल्यू है 1.36, ये है Cl2 के लिए, तो ये है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैल्यू है इसका 1.36। नंबर 2 पे इन चारों में आपको दिखाई दिया कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू आएगा आयोडीन के लिए। सो आई विल राइट हियर I2 वैल्यू है इसका 0.54 होल्ड, बिकॉज यू नीड हियर लार्जर वैल्यूज। इसके बाद में कौन सा आएगा फिर, यस, देन द नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर वैल्यू विल बी CD2 प्लस। सो आई विल राइट हियर CD2 प्लस, वैल्यू है -0.4 होल्ड। फिर बाद में यहां पे है Al3 प्लस -1.66 होल्ड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इस तरीके से आपको ये लिखने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं हमेशा एग्जाम्स में। नोट डाउन दिस। Now this is the second application, relative strength of a reducing agent. The species on the right side of the half reactions are reducing agent. I told you जो भी यहाँ पे है species which are present on the right hand side of the half reaction, they are nothing but the reducing agent, मतलब arrow के आगे वाले, ठीक है। The species appearing at the bottom right side of the half reaction which are associated with the large negative E naught values are the effective electron donors. They serve as a strong reducing agent. मतलब जो दिखा है नीचे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, they are nothing but the strong reducing agent because they have a very strong tendency of donating the electrons. Okay, the species appearing at the bottom right side. तो जो भी दिए हैं, देखिए ये है यहाँ पे बॉटम में दिए हुए वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे है लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो भी है, तो बॉटम वाला जो है राइट हैंड साइड, इधर के जो भी है स्पेसीज, दे आर नथिंग बट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस एज द ई नॉट वैल्यू डिक्रीजेस। ई नॉट का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप देखोगे तो वहां पे दिया है एक एरो जो ऊपर से नीचे आते वक्त वहां पे दिखाया गया है, देयर इज अ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। और आप तो जानते हो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ई नॉट वैल्यूज दे आर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मीन्स they are becoming more and more negative. So we can say as the value of E naught becomes more negative, the strength of reducing agent increases. ठीक है, चलिए इसके ऊपर देखिए कैसा आता है क्वेश्चन। Which of the following species are reducing agents? Okay, arrange them in order of increasing strain under standard state condition. The स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो ये आपको दिए हैं बहुत सारे वैल्यूज, इनमें से कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इनमें से कौन कौन से हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो देखिए जो भी प्रेजेंट होते हैं एरो के राइट हैंड साइड में और जिनके लिए वैल्यूज है मोस्टली निगेटिव, ऐसे कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये है पोटेशियम, ओके, देन मैग्नीशियम, देन Ti2 प्लस एंड देन Na, ओके। सो हियर we can write here, yes, the species on the right side of half reactions are reducing agents. Reducing agents are potassium, magnesium,
yes, Ti2 प्लस एज वेल एज Ni। तो ये है यहां पे चारों रिड्यूसिंग एजेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ reducing agent increases as E naught value decreases। तो देखिए सबसे कम यहां पे E naught का वैल्यू किसका है? ये है पोटेशियम का। सो इट्स नथिंग बट आई विल से द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई विल राइट हियर पोटेशियम का वैल्यू है, यस, हमें लिखना है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहां पे आएगा सबसे पहले पोटेशियम, इसके लिए वैल्यू है -2.93 वोल्ट। ठीक है, फिर इससे कम अगर आप देखोगे तो पोटेशियम से कम यहां पे है फिर इन चारों में ये है मैग्नीशियम का वैल्यू। मैग्नीशियम का वैल्यू क्या दिया है आपको? -2.36 वोल्ट्स। फिर इसके आगे मैग्नीशियम के बाद है वैल्यू किसका? टिटेनियम का। सो आई विल राइट हियर Ti2 प्लस द वैल्यू इज -0.37 वोल्ट। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे निकेल Ni -0.23 वोल्ट। सो ये है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर of reducing agent. So potassium will be strongest reducing agent among these four. ठीक है, you know that they are present at the bottom right hand side of the series. That's why in this manner we can write their order. Please note down these things properly. तीसरा इसका जो एप्लीकेशन है ये है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, वी कैन प्रेडिक्ट वेदर द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट बाय द हेल्प ऑफ दिस ई नॉट वैल्यूज। ओके, कैसे? देखिए, इफ द स्पीसीज विद द हायर ई नॉट वैल्यू इज गेट रिड्यूस, आई मीन इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन from the species which is having lower E naught values or which is get oxidized, or we can say donates electron, then the galvanic cell is said to be spontaneous. ठीक है, the standard cell potential, if it is positive, then the cell reaction is said to be spontaneous under the standard conditions. ठीक है, मतलब टेम्परेचर यहां पे होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशंस दे आर मस्ट बी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स मस्ट बी प्रेजेंट। प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल दिस कंडीशंस आर नोन एज अ स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, देखिए अगर हमें जानना है कि अगर आपको क्वेश्चन आया है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वुड Ag प्लस आयंस ऑक्सीडाइज मेटेलिक मैग्नीशियम। आपको पूछा है कि Ag प्लस के आयन जो है ये मेटेलिक मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या? तो पहले इसके लिए हमें लिखना होगा रिएक्शन। सो रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम बाय Ag प्लस। देखिए मैग्नीशियम का जब भी होगा ऑक्सीडेशन तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Mg2 प्लस। ठीक है, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग यहां पे रिएक्शन लिखेंगे Ag प्लस के लिए। Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Ag। ठीक है, तो यहां पे ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहां पे 2 आने चाहिए, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा। फिर हम लोग यहां पे ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं Mg ट्वाइस Ag प्लस
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल, यहाँ पे आएगा Mg2 प्लस ट्वाइस Ag, ये है यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन। ऑब्वियसली ये है सॉलिड, ये आएगा एक्वस एंड सॉलिड, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, और Ag+ के जो आयंस है ये यहाँ पे हो जाएंगे रिड्यूस। तो हमें यहाँ पे EMF सीरीज के हेल्प से देखने होंगे वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम? यस, तो इसका जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, ये वैल्यू दिया है यस E0 Mg, ओके, फ्रॉम द EMF सीरीज, फ्रॉम द सीरीज, यस, E0 ऑफ मैग्नीशियम का वैल्यू यहां पे दिया है, और ये वैल्यू है -2.37, ठीक है। एंड यहां पे जो वैल्यू दिया है Ag का फॉर सिल्वर, द वैल्यू इज +0.799। चलिए इसके लिए मैं लिखता हूं E0 ऑफ Ag के लिए आई विल राइट हियर +0.799 की जगह पे मैं लिखता हूं ओनली 8, ओके। सो दिस इज द वैल्यू हियर फॉर सेल। देखिए यहां पे मैग्नीशियम का हो रहा है इधर ऑक्सीडेशन, सो दिस इज नथिंग बट हियर एनोड, और ये है यहां पे कैथोड। सो आई विल राइट हियर फॉर सेल विथ magnesium as anode and Ag as cathode. You know that E0 cell is equal to E0 magnesium का है यहाँ पे एनोड, कैथोड Ag का, इसीलिए E0 ऑफ Ag माइनस E0 ऑफ Mg हमें यहां पे करना होगा, ठीक है, ओके। सो वैसे भी Ag का यहां पे ज्यादा है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी टेकन एज अ कैथोड। सो चलिए यहां पे वैल्यू लेना पड़ेगा मुझे, यहां पे 0.8 माइनस 2.37, सो 0.8 प्लस 2.37 यहां पे आएगा, यस। सो वैल्यू विल बी हियर 3.17 वोल्ट्स। सो E0 सेल का यहां पे जो वैल्यू आया है ये है पॉजिटिव वैल्यू, सिंस E0 सेल इज पॉजिटिव, द cell reaction is spontaneous, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहां पे ये वैल्यू फाइंड किया है। ऑब्वियसली जो भी रहेगा, जहां पर भी होगा ऑक्सीडेशन वो रहेगा एनोड, जहां पे होगा रिडक्शन वो रहेगा यहां पे कैथोड, ओके। हायर E0 वैल्यू जिसका भी होगा वो रहेगा कैथोड, ओके, और जहां पे भी वैल्यू होगा कम वो होगा एनोड। सो इन दिस वे यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी E0 सेल का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव आया है, इसका मतलब यस Ag+ आयंस कैन ऑक्सीडाइज मेटालिक मैग्नीशियम। तो ये इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एनी redox reaction by using the EMF series, okay. So note down these things properly. Now let's see here one more problem which is given in your textbook based on the electrochemical series. From E0 values given in the above electrochemical series, predict whether Sn can reduce I2 और Ni2+। तो इसके लिए हमें लगेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पे हमें पूछा है कि कैन
SN reduce I2? It's the first part. And can SN reduce Ni2 plus? It's the second part. तो चलिए पहले हम लोग यहां पे देखेंगे द फर्स्ट केस. यस, कैन SN reduce I2. ठीक है, तो I2 का यहां पे हो रहा है रिडक्शन, तो इस केस में SN का इधर होना चाहिए ऑक्सीडेशन. सो जो यहां पे हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, SN solid, it will lost 2 electrons with the formation of SN2 plus aqueous. ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि जब SN I2 को रिड्यूस करेगा मतलब वो खुद होगा यहां पे ऑक्सीडाइज. I2 का यहां पे हो रहा है रिडक्शन, सो आई विल राइट हियर I2 प्लस which is solid here, I2 plus here 2 electrons and there is a formation of 2I minus. इस तरीके से ये यहां पे रिएक्शन आएगा. यहां पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है इधर रिडक्शन. ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन को हमें यहां पे ऐड करना होगा. सो SN सॉलिड प्लस I2 सॉलिड, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएंगे कैंसल और आपको यहां पे मिलेगा SN2 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस. ये है यहां पे होने वाला ओवरऑल रिएक्शन. ये है यहां पे होने वाला ओवरऑल रिएक्शन. सो SN पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, मींस हियर SN विल एक्ट एज अ एनोड एंड आयोडीन जो है यहां पे इट its electrode, it will act as a cathode. So we know that what is the value of E naught here. If you check it properly here, the value of E naught of SN यहां पे दिया है, yes, minus 0.136 and for I2 the value is 0.535. So E naught SN के लिए वैल्यू है माइनस 0.136 होल्ट्स एंड E नॉट ऑफ I2 इसके लिए वैल्यू दिया है प्लस 0.535. Isn't it? Yes, 535 यहां पे दिया है, 535. ऑब्वियसली वैसे भी मैंने आपको बोला है कि जिसके लिए ज्यादा होगा वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो वहां पे होगा, मतलब वो कहां पे होगा, ये यहां पे होगा कैथोड. ठीक है, सो द फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर, E नॉट सेल इज इक्वल टू, यस, E नॉट I2 माइनस E नॉट हियर SN, क्योंकि यहां पे जो I2 है ये है कैथोड और जो है SN ये रहेगा एनोड. ऑलवेज रिमेंबर द इलेक्ट्रोड विथ हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल इट विल वर्क एज अ कैथोड. सो यहां पे चलिए वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे हम लोग. सो 0.535 वोल्ट माइनस 0.136 volts. So its answer, it will come here 0.535 volts plus 0.136 volts. So I'm sorry, here 5 plus 6 is 11, so 1 carry, 3 plus 1 is 4 plus 3 7, सही था. 0.671 वोल्ट ये वैल्यू आएगा यहाँ पे ई नॉट सेल के लिए. ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू जो आया है ये आया है पॉजिटिव, मीन्स द redox reaction is spontaneous. So this is spontaneous reaction, and that's why we can say here Sn can reduce I2. ठीक है, therefore Sn can reduce
I2। तो ये यहां पे हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड हियर, कैन SN reduce Ni2 plus Ni2 plus here। सो ऑब्वियसली यहां पे वापस वही रिएक्शन होगा, SN है सॉलिड, ठीक है। I2 के लिए यहां पे फेज लिखना होगा गैसियस, ठीक है। SN यहां पे है सॉलिड, इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द फॉर्मेशन ऑफ SN2 प्लस, ठीक है। ऑक्सीडेशन यहां पे रिएक्शन होगा Ni2 प्लस जो कि है इधर एक्वस, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म Ni सॉलिड, इधर होगा रिडक्शन, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना होगा। सो SN सॉलिड प्लस Ni2 प्लस, ये यहां पे है एक्वस, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कैंसल, और SN2 प्लस यहां पर वापस आएगा इधर, एंड Ni यहां पे है सॉलिड। ये है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। देखिए वापस यहां पे SN पे हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड निकेल पे यहां पे हो रहा है रिडक्शन। सो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू नो दैट हियर इन दोनों के जो वैल्यूज है पहले हमें यहां पे लिखने होंगे। E नॉट SN का वैल्यू हमें पता है -0.136 वोल्ट्स। द E नॉट Ni2 प्लस, ये जो है इलेक्ट्रोड, इसके लिए वैल्यू दिया है, यस लेट मी चेक इट आउट हियर, क्या है वैल्यू -0.257। आई विल राइट हियर -0.257, ठीक है। Ni2 प्लस नहीं, बस हम यहां पे दिखाएंगे ओनली Ni बिकॉज Ni इज इलेक्ट्रोड, दैट्स व्हाई। नो, नाउ हियर E नॉट सेल इज इक्वल टू, यस E नॉट, देखिए इन दोनों वैल्यू में से अगर आप कंपेयर करोगे, वापस देखो कि इधर जो वैल्यू है, मतलब निकेल पे इधर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिडक्शन, मींस हियर इट विल एक्ट एज अ कैथोड। सो E नॉट S Ni माइनस E नॉट है यहां पे SN इज इक्वल टू -0.257 माइनस 0.136, ऑब्वियसली ये वोल्ट में है। सो -0.257 प्लस 0.136 वोल्ट्स। 7 - 6 is 1, 5 - 3 is 2, 2 - 1 is 1, और यहां पे है वैल्यू -0.121 वोल्ट। अगर आप यहां पे देखोगे तो E नॉट सेल का जो वैल्यू आया है, ये आया है निगेटिव, देयरफॉर दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, and hence SN cannot reduce Ni2 प्लस, ये हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। सो इन दिस वे, इस तरीके से आपको जवाब देना है इन क्वेश्चंस का। रिमेंबर ओनली वन थिंग, एज आई टोल्ड यू, इन द सेल, in the galvanic cell, as I told you, there are two sides, left hand side electrode and right hand side electrode, ठीक है। यहां पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, यहां पे होता है हमेशा रिडक्शन, ओके। सो यू नो दैट ये होगा यहां पे निगेटिव और ये होगा यहां पे पॉजिटिव। सो दिस थिंग वी शुड ऑलवेज नो, ठीक है। तो ये जो है जहां पे होगा ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग इधर बोलेंगे एनोड, और ये है यहां पर कैथोड। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ओके। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली इन द नोटबुक।
Students, now let's solve some of the numericals which are given in the exercise. Okay, so यहाँ पे दिया है predict whether the following reaction would occur spontaneously under standard state conditions. ये तीनों जो यहाँ पे लिखे हैं रिएक्शंस बोर्ड के ऊपर, ये आपको प्रेडिक्ट करने हैं कि ये स्पॉन्टेनियसली होंगे या फिर नहीं होंगे. ऑब्वियसली सेम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना होगा कि यहाँ पे कौन सा है कैथोड, कौन सा है एनोड. यू नो दैट बाय राइटिंग हियर ऑक्सीडेशन नंबर्स वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कहाँ पे हो रहा है रिडक्शन. कैल्शियम का यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन नंबर ये है 0, कैडमियम का यहाँ पे आएगा +2, कैल्शियम का यहाँ पे आएगा +2, कैडमियम का यहाँ पे है 0, क्योंकि अनकंबाइंड फॉर्म में हमेशा किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. एंड इन केस ऑफ आयंस जो भी चार्ज है वही होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर. तो कैल्शियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 0 से +2 यहाँ पे चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम. देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. इसका मतलब यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन. ठीक है, +2 का यहाँ पे है 0, मतलब कैडमियम का पहले +2 था, अब है 0. यहां पे हुआ है डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहां पे हुआ है रिडक्शन. सो एट कैथोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर एनोड. एट एनोड व्हाट विल हैपन हियर, कैल्शियम जो कि है सॉलिड, इट विल लॉस इलेक्ट्रॉन, बट हाउ मेनी. देखिए यहां पे चार्ज है +2, सो यू हैव टू शो हियर +2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. एंड कैल्शियम आई विल राइट हियर Ca2+. ये रहा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. At anode, sorry, at cathode, I have to write here, at cathode, Cd2+ plus 2 electrons, it will give here Cd. Aqueous है ये, यहाँ पे है ये solid, reduction इधर होगा. दोनों रिएक्शंस को हमें ऐड करना होगा, तब जाके हमें मिलेगा नेट ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है ना. Cd2+ है एक्वस, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएंगे कैंसल. Ca2+ एक्वस एंड देन Cd है सॉलिड. सो फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, you know that E0 ऑफ कैल्शियम का वैल्यू क्या है और E0 कैडमियम का वैल्यू यहां पे क्या है, चलिए देखते हैं. फॉर कैल्शियम द वैल्यू इज -2.866. सो यहां का वैल्यू है -2.866 volts ऑब्वियसली. एंड फॉर कैडमियम द वैल्यू इज -0.403 -0.403 volts. ठीक है. Therefore, for the cell, yes, calcium as anode and cadmium as cathode. देखिए क्या आएगा वैल्यू. सो E0 सेल इज इक्वल टू, देखिए E0 ऑफ कैडमियम माइनस E0 ऑफ कैल्शियम. ये है इनके वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स. सो जो वैल्यू है कैडमियम का वो है -0.403 वोल्ट, माइनस यहां पे है 2.866 वोल्ट्स. सो -0.403 प्लस 2.866. 6 minus 3 is 3. 6 minus 0 is 6. 8 minus 4 is 4. And 2 minus 0 is 2. So value is coming to be, am I right? Yes. Plus 2.463 volt. देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यू यहाँ पे जो आया है ये वैल्यू है पॉजिटिव. सो दिस रिएक्शन आई विल राइट एज अ स्पॉन्टेनियस.
ये यहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट। नाउ सेम फॉर Br माइनस, वी कैन राइट हियर -1 एज अ चार्ज, Sn का आएगा +2, यहाँ पे Br2 ये अनकंबाइंड फॉर्म में है, यहाँ पे भी ये 0 आएगा, Sn का यहाँ पे 0 आएगा। Br का देखिए पहले -1 था, अब है 0, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। Sn अगर हम यहां पे बात करेंगे तो +2 से 0 हुआ, मतलब हुआ है डिक्रीज, ये है रिडक्शन। सो एट एनोड द रिएक्शन that will takes place here is Sn2 plus aqueous, ये है रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, नो मैंने यहां पे एनोड जो है ये है Br माइनस, तो यहां पे आना चाहिए Br माइनस, क्योंकि इधर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो आई विल राइट हियर ट्वाइस Br माइनस जो कि है एक्वस, इट विल लॉस ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Br2। चार्जेस देखिए आप, इस तरफ के चार्ज है -2, तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आने चाहिए। ठीक है, यू नो दैट यू मस्ट बी स्टडीड द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लास्ट ईयर इन द टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज को करते हैं बैलेंस। तो ये रहा यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड नाउ एट कैथोड वी कैन राइट Sn2 plus aqueous will gain 2 electron with the formation of Sn solid. ये है रिडक्शन रिएक्शन। सो Sn2 प्लस है एक्वस, ट्वाइस Br माइनस ये है एक्वस, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएंगे कैंसल, Sn है सॉलिड, Br2 है यहां पे लिक्विड। ये है नेट सेल रिएक्शन। ऑब्वियसली जैसे हमने लिखा है, आपको पता है इनके वैल्यूज आपको पता होने चाहिए कि क्या है इनके ई नॉट के वैल्यूज। सो फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए एग्जाम में आपको इनके ई नॉट के वैल्यू दिए जाएंगे। ठीक है, सो don't worry about that. So the value of E naught of Sn and E naught of Br2 we can write here. देखते हैं यहां पे क्या है इनके वैल्यूज। E naught of Br2 का वैल्यू है 1.080, its value is 1.080 volt, and the value of Sn, its value, yes, it is nothing but equal to minus 0.136 volt, minus 0.136 volts. I need this space again, तो मैं इसको अभी यहां से करता हूं रफ। ठीक है, सो फॉर द सेल जिसमें Br2 एज एनोड है एंड Sn एज कैथोड, वी कैन राइट हियर E naught सेल इज इक्वल टू, यस, E naught यहां पे जो है कैथोड, ये है Sn वाला। सो E naught ऑफ Sn माइनस E naught ऑफ Br2। ओके, जहां पे भी आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, जहां पे भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑब्वियसली यहां पे है एनोड और ये है यहां पे कैथोड। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर हियर Sn का जो वैल्यू है ये है माइनस 0.136 वोल्ट्स and here minus 1.080 volts. So value will be minus here, minus 0.136 minus 1.080
080, ठीक है। सो 6 value is minus 1.216 volts. So the value of E naught cell we have got here is minus negative value. Okay, therefore the reaction is non-spontaneous. ठीक है। So in this manner we can predict whether the given reaction is spontaneous or not. काफी आसान है। अगर E नॉट सेल का वैल्यू आता है पॉजिटिव अंडर द गिवन कंडीशन, आपको देखो यहां पे E नॉट सेल आई मीन E नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एट एनोड, इनका वैल्यू अगर मिलता है पॉजिटिव तो डेफिनेटली दैट रिएक्शन इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस। सो ऑब्वियसली वी कैन से अगर रिएक्शन होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, मतलब E नॉट रिडक्शन एट कैथोड का वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द E नॉट रिडक्शन एट एनोड। ठीक है, तो ऐसे आपको मिलेगा वो सेल स्पॉन्टेनियस, आई मीन वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब द सेल इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली वर्किंग। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली इन द नोटबुक। चलिए और एक जो बचा हुआ था न्यूमेरिकल तीसरा वाला, ये भी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, Ag का यहाँ पे वैल्यू आएगा 0 ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे है +1, यहाँ पे आएगा वैल्यू अगेन 0। नाउ पहले Ag 0 था, अब है +1, तो यहाँ पे हुआ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये है ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Ni2+ यहां पे +2 था, अब 0 है, ये है रिडक्शन वाला रिएक्शन। सो वी कैन वेरी इजीली राइट, आपको पता है अभी एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विल अकर। सो यस, Ag सॉलिड ट्वाइस, इट विल गिव हियर Ag प्लस के ऊपर चार्ज सिर्फ यहाँ पे एक ही है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। आई विल शो फर्स्ट ऑफ ऑल, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Ag+। ठीक है, ये है एक्वस। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो मतलब यहाँ पे हमें भी 2 ही लिखने पड़ेंगे फिर वैल्यूज, अदरवाइज सिंपल रिएक्शन अगर हमें यहाँ पे लिखना होता तो Ag इट विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Ag+। ओके, तो ये यहाँ पे है ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन एट कैथोड। क्या आएगा, Ni2+ है एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव Ni सॉलिड, ये है रिडक्शन। ठीक है, रिमेंबर इन द redox reaction the number of electrons lost should be equal to the number of electrons gain। ठीक है, सो इन दोनों को अभी हम लोग ऐड करेंगे, ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस Ni2+ यहां पे आएगा एक्वस, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएंगे कैंसल, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस Ag+ जो कि है एक्वस प्लस Ni है यहां पर सॉलिड। ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, नाउ फ्रॉम the electrochemical series, yes, E naught value of Ag, ये दिया क्या है, Ag का वैल्यू यहां पे है 0.799 वोल्ट, सो 0.799 वोल्ट एंड E naught ऑफ Ni, इसके लिए जो वैल्यू है फॉर Ni द वैल्यू इज -0.257, -0.257 है वोल्ट्स।
Okay, so for the cell having yes Ag as anode and Ni as cathode, ये हम लोग यहां पे लिख रहे हैं बिकॉज यहां पे होता है ऑक्सीडेशन एनोड पे. सो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन एट कैथोड मीन्स हियर Ni का आएगा वैल्यू माइनस E नॉट रिडक्शन एट एनोड. मतलब ये जो वैल्यू हम लोग यहां पे लेंगे ये रहेगा निकेल Ag के लिए. आई एम सॉरी. सो पुट दिस वैल्यूज हियर. Ni का वैल्यू यहां पे क्या है माइनस 0.257 वोल्ट्स माइनस यस जो Ag का वैल्यू यहां पे दिया है ये है 0.799. सो द वैल्यू विल कम हियर अगेन माइनस 0.257 minus 0.799. So वैल्यू ये आ रहा है माइनस में. सो यू नो दैट सिंस द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल इज माइनस, सिंस E नॉट सेल इज negative, the cell reaction is non-spontaneous, that we can say. ठीक है, नोट डाउन. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू राइट हियर फोल्ड. ठीक है, स्टूडेंट्स ये है यहां पे दो जनरल रूल्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं. रूल नंबर 1, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है कि EMF सीरीज में वो होते हैं प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन. ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज एनी रिड्यूसिंग एजेंट. देखिए दे आर प्रेजेंट you know that on the right hand side of the half reaction. So an oxidizing agent can oxidize any reducing agent that appears below it, but it cannot oxidize the reducing agent appearing above it in the electrochemical series. Here है rule number 1. Second thing, reducing agent can reduce the oxidizing agent located above it इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो अगर ये आपने दो रूल्स ध्यान में रखें तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू राइट द आंसर्स फॉर सच ए न्यूमेरिकल्स. अदरवाइज यू हैव टू प्रेडिक्ट हियर वेदर द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, जैसे हमने यहां पे किया था. ओके, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ सच अ क्वेश्चन. लेकिन अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, या फिर आपको पूछा जो भी क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना होगा. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज. ऑलरेडी वैसे जो भी बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स है हमने यहां पे सॉल्व किए हैं, बट स्टिल सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस वी विल टेक in the next lecture. Okay, so see you in the next lecture. Goodbye.